हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर जो 4 है हिस्ट्री का है यानी इतिहास का है, जिसमें आज हम करेंगे द वैदिक एज यानी जो है वैदिक काल के क्या विशेषताएं थे उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो होगा कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जो है यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो उन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर जो होगा अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जिनके सिलेबस में द वैदिक एज है यानी वैदिक काल है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here the Vedic age. There is a 1500 BC to the 600 BC. There is a most important chapter here. The most important point arrive here the Vedic text. So what do you mean the Vedic text? There is some important for the BA student and also here a UPSC student. The Vedics is a text, and first of all your mind, what is a Veda? What is a Veda? There is a first important point arrive your mind. There is a word is a Veda is derived from to the roots is a Ved, which mean to know. There is a word is a Veda is a mean to the square knowledge of containing in the text known as the Vedic text. And two categories of texts are included in the corpus of the Vedic literatures, and these are the mantra and the Brahman. There is a mantra is a category from the course of the Vedic text and has a four is a separate collection, and these are the as a Rig Veda, Samveda, Azur Veda, and Artha Veda. The Brahmans, not to be confused with the Brahmanicals, is a class of porous text is containing to the explanation of the mantras, as well as their sacrificial is the details. There are four Vedas together with the Brahmans are also known as the Shruti. There is a Shruti. Shruti here is hearing that which is was directly heard by the sages. The Ranyakas is a literature forest terraces, and there is a Upanishad sitting down to the beside. There is a most important here. Adina Sakas is a literacy for forest trees, and Upanishad is a sitting down to the beside. Are mainly is a appendix to the Brahmans, and these are known as the Vedanta. The Vedanta end of the Veda and containing the philosophically is a discussion here. The Rig Veda is a collection of the 1028 hymns and divided into the 10 is a mandals. They are the earliest is a composition, and the hence depict their life of the earlier Vedic life peoples in India. There is a some Veda is a collection of the verses is a mostly taken from to the Rig Veda, but is arranged in there is a poetry form of facilitated their singing. The Yajurveda is found in the two recensions in black is a black and the white and are fully of a tulle. There is a format to the public history. There is individually there is a Artha Veda is a collection of the magic spell and the charms to be war of the evils, spirit and diseases. There is a most important here Artha Veda. The Artha Veda here is a collection of magical spell and the charms to be ward of the evil and spirit of the disease. Carefully study however show that is a Vedic text reflects to the stage of development in the term of literatures as well as the social and cultural
evolution. The Rig Veda, which is the oldest Vedic text, reflect on the stage of the social and cultural development, whereas there is the other three Vedas is another stage. The first stage is known as the Rig Vedic period. Their first stage here, Rig Vedic period, or earlier Vedic period, and their later is stage is known as there is a later Vedic period. The age of the earlier Vedic period is a correspond with there is a date of composition of the Rig Vedics humans, and the date has been to the fix between to the 1500 BC and 1000 BC. The later Vedic period is a place between to the 1000 BC and 600 BC. Recently, the Rig Veda has been included by the UNESCO in the list of the literature signifying the word human heritage. There is a most important for the Rig Veda here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो फर्स्ट है, ये जो है वैदिक काल के अंतर्गत है। इसमें जो हम 1500 BC से लेकर 600 BC तक के जो है हम बात करेंगे। ये कई मानने में बीए वाले बच्चों के लिए और जो यूपीएससी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें सभी बातें जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। तो आप इस त्रिपाण से सेंटर के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा, पूरा चैप्टर नहीं समझिएगा, तो ये अधूरा जानकारी आपके समक्ष रहेगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अगर हम बात यहाँ पर करें वैदिक साहित्य की, तो कहते हैं वैदिक साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वैदिक साहित्य में हमने बहुत कुछ जानना है। हमने कहते हैं वेद क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता होगा कि भाई वेद क्या है और वेद हमारे लिए इतने कितने ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेद की बात करें तो क्या वेद जो है विद धातु से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जानना। कहीं से भी तो आप जान सकोगे ना। ये वेद शब्द का अर्थ है वेद साहित्य के रूप में जाने वाले वैदिक साहित्य में निहित पवित्र ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य की संपूर्ण जो है ग्रंथवाली में 2 प्रकार की पुस्तकें शामिल है, यानी 2 तरह की पुस्तकों को जो है इसके अंतर्गत आता है। ये है मंत्र और दूसरा है ब्राह्मण। देखिए, मंत्र और ब्राह्मण 2 जो है प्रकार ग्रंथवाली शब्दवाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र वर्ग की जो है ग्रंथवाली वैदिक ग्रंथों की प्रमुख ग्रंथवाली रही है, जिसमें 4 पृथक ग्रंथ सम्मिलित है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मंत्र वर्ग की जो है ग्रंथी है, वैदिक ग्रंथें हैं, वो ऋग्वेद है, समवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। ये 4 वेद जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हर एक ग्रंथ जो है अपने खासियत से भरा पड़ा है। ब्राह्मण ग्रंथों को जो है ब्राह्मणीय वर्ग मानने की जो भूल ना करें, क्योंकि ब्राह्मणीय जो है ब्राह्मणीय नहीं हो सकता है। वास्तव में गद्य रूप में लिखे गए ग्रंथ है जिसमें मंत्रों की परिभाषा को विस्तार दिया गया है, जिसमें बलिदान संबंधी कर्मकांड भी इसमें सम्मिलित है। ब्राह्मण सहित 4 वेदों में उपलब्ध साहित्य की श्रुति कहते हैं, यानी से हम क्या कहते हैं दोस्तों, श्रुति कहते हैं। ब्राह्मण सहित 4 वेदों में उपलब्ध जो साहित्य है उसको हम श्रुति कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों ने सुनाया गया था, क्योंकि उस समय सिर्फ सुनाया जाता था, लिखा नहीं जाता था। इसलिए श्रुति का इसका नाम दिया गया कि भाई हम जो थे ऋषि मुनि से बात को सुने थे, जाने थे, इसलिए इसको श्रुति का नाम यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखा जाए तो अरण्यक शब्द अर्थ है जंगल संधि पत्र, यानी अरण्यक शब्द जो है वास्तविक शब्द जंगल संधि पत्र, और उपनिषद का मतलब तो आपको पता ही होगा कि पास में ही बैठे और बैठ के आप ज्ञान प्राप्त करें, उसे उपनिषद कहते हैं। यानी गुरुओं के समक्ष बैठ के ज्ञान प्राप्त करने को ही हम उपनिषद कहते हैं। ये मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के जो है परिष्ठ है, और इसमें वेदांत यानी वेदों का अंत, वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है। इसमें दार्शनिक विचार विमर्श जो है पूरी किया गया है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो देखा जाए तो 1028 मंत्रों का संकलन है, यानी ऋग्वेद में 1028 मंत्रों का संकलन है, जिसे हम 10 मंडलों में बांटा गया है। ये आरंभिक रचनाएं हैं। अंदर इसमें भारत के वैदिक कालीन लोगों के आरंभिक यानी प्रारंभिक जीवन का उल्लेख भी यहाँ किया गया है। समवेद काव्य पदों का संकलन है जो अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं, और इन्हें काव्यात्मक रूप से दिया भी गया है ताकि इन्हें गाया जा सके। यानी कि पहले के समय में इन वेदों के जो होते थे, सामवेद जो होते थे, उसमें गाया जाया करता था। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है।
अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद दो रूपों में मिला है, एक है श्याम यानी कृष्ण और एक शुक्ल यानी सफ़ेद। और इसमें जो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप में किए जाने वाले अनुष्ठानों का विवरण किया गया है। यानी आप समझ सकते हो कि समवेद में जो है वहाँ पर जो है गाने वाली जो है किया जाता था, गाया जाया करता था। यजुर्वेद में जो अगर देखा जाए तो इसमें अनुष्ठानों का विवरण किया गया था। अगर हम बात करें अर्थवेद का, तो अर्थवेद में आपको पता ही होगा कि जादू, तंत्रों और मंत्रों का संग्रह था, जिसका प्रयोग भूत प्रेतों को भगाने और रोगों के उपचार के लिए किया जाता था। यानी अर्थवेद का जो था बहुत महत्व था, क्योंकि जादू टोना में उपयोग तो होता ही था, प्लस इसको रोगों के उपचार के लिए भी हम अर्थवेद का उपयोग किया करते थे। तो ऋग्वेद की हर एक चीज़ों का जो है अपना एक महत्व है, अपना एक समय था जिसमें इसका उपयोग जो है तो होता था, बहुत काफ़ी किया जाता था। देखा जाए तो वैदिक साहित्य गहन अध्ययन से यह पता चलता है कि वैदिक ग्रंथ साहित्यिक दृष्टि से सामाजिक और संस्कृति विकास के दो चरणों के क्रमिक विकास की जानकारी हमें देते हैं। यानी वैदिक साहित्य के अगर अध्ययन आप करोगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि यहाँ पर दो चरणों की जो है हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद जो कि प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये आपको दिमाग में रखना है, यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है। सामाजिक और संस्कृति विकास की एक चरण की जानकारी हमें देता है, यानी समाज का कैसे विकास हुआ इसके सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऋग्वेद में है। अन्य तीन वेद दूसरे चरणों के विकास क्रम को जानकारी देते हैं। प्रथम चरण के ऋग्वैदिक काल या जो है प्रारंभिक वैदिक काल भी हम कह सकते हैं, और उसके बाद के चरण को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आरंभिक वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना का काल माना जाता है और 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के कालखंड के इस काल अवधि में रखा गया है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आरंभिक वैदिक काल ऋग्वैदिक जो है मंत्रों का रचना का काल है, और इसकी समय अवधि क्या है दोस्तों, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी मानी जाती है। यानी 1000 से लेकर जो है 600 ईस्वी किसकी मानी जाती है, उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ बच्चों को जो है एमसीक्यू के चक्कर में वो अपना माइंड को डिवेट कर देते हैं, क्योंकि उनको चैप्टर उन्होंने समझा नहीं होता, इस वजह से इनकी इतनी प्रॉब्लम आती है। हाल ही में संयुक्त राज्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जो है ऋग्वेदों को विश्व जो है मानव धरोहर को साहित्य में शामिल किया गया। देखिए, अब जो है विश्व में भी इसका जो है जागरूकता पैदा हो रही है, और देखिए ऋग्वेद को जो है एक विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। अब देखिए कितनी बड़ी जो है यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है, और कितना बड़ा जो है यहाँ पर कदम उठाया गया है यूनेस्को के द्वारा, यानी संस्कृति संगठन द्वारा ये उठाया गया है कि ऋग्वेद को जो है हम मानव जो है विश्व मानव धरोहर के रूप में इसको सम्मिलित करें। The next topic is a migration of the Aryan. There is a most important topic here. The author of the Vedic hymns as were to the Aryan. But who were to the Aryan? First of all, your question, your mind, who were the Aryans? In the 19th century, Aryan were considered as a race. Now it is a thought of there is a strict group of people who spoke Indo-European language. There is a speak Indo-European language from which later immigrated, and Sanskrit is Latin, is a Greek, etc. This is a reflect from to the word in this is a language which are similar in a sound and meaning. Thus, the Sanskrit word is a mantris and pitris are is a similar to the Latin matter and patter. That is the most important here. There's same word in the Latin and the Sanskrit word mantri pitri, and the Latin is a matter patter. Similarity is the inner of the Hittite is a Turkish language is similar in the to Indra of the Vedas, and the Suryas is the Marathas of the Kasistri is a Manapustima. Yani Mesopotamia is the inscription and the equivalent of the Vedic Surya on Marut. That is the most important here. On there are Mesopotamia and the inscriptions, and originally the Aryans seem to live somewhere in the steppes stretching from the southern Russia to the center Asia. From here a group of they migrate the northern west India and come to this called Indo-Aryan or just Aryan. The archaeologist is the evidence of the migration come from what is known as the Andronovo, is a culture situated in the south
southern Siberia. The culture is a flourish in their second 11 BC is formed here. People moved to the north of Hindu Kush, the area known as the Bactrians Margana, and the archaeologically is a complex and form here the ancient India. During the period between 1900 BC to 1500 BC. We get in this is evidence horse, pork, wheels, fire cutter, and the cremation, which is a forming important part of Aryan life in India. Apart from this, there is an artifact and the is a ceramics is also suggests the movement of people from the Central Asia religions to the South Asia regions. And however, it is may be noted that some scholars still agree that the Aryan were to the indigenous people of India and that they did not come from outside. The new peoples come in the several is a batches, span several is 100 years. All this is a well interaction between to the Indo-Genesis inhabitant and the new commerce is continually. One of the important results of the process of interaction was that the Vedic form of the Aryan language has become a predominant in the entire northern western India. The text is composed in this language as I mentioned above are popularly known as the Vedic text. Here show the map is the most important 3500 BC to 1500 BC. There is a map of this type. There is the most important here Arabia, India, China, Asia, and the Aryan is come here. The Aryan is a mark of is here arrow show the Aryan come in India is a 2500 BC. The Indos. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है आर्य का हस्तांतरण। देखिए आर्य के जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम जो है वैदिक काल के बारे में कर रहे हैं तो आर्यन के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं आर्यन जो है दूसरे जगहों से भारत में प्रवेश किया और उन्होंने यहाँ पर जो है कई सालों तक अपना जो है अस्तित्व बनाए रखा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है। अगर हम वेद मंत्रों के लेखक आर्य हैं तो ये बात जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भाई आर्यन थे कौन। क्योंकि यहाँ पर बात ये आया है कि वेद मंत्रों के लेखक जो थे आर्य थे। जब आर्य थे तो आर्य थे कौन। कहते हैं 19वीं सदी में आर्यों का एक वंश माना जाता था, परंतु अब इन्हें ऐसी भाषी समूह के लोगों के रूप में माना जाता है जो इंडो यूरोपियंस भाषा बोलते थे और उस भाषा से बाद में संस्कृत, लैटिन और ग्रीक इत्यादि भाषाओं का जन्म हुआ। इसकी जानकारी इस भाषाओं के शब्द से मिलती है जिनकी ध्वनि और अर्थ सामान्य ही होती हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर समझने के लिए कि संस्कृति, लैटिन और ग्रीक इनके भाषा का जो वर्ड है कई मानने में एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि संस्कृत शब्द में हम मात्र या पितृ कहते हैं और इसी को लैटिन वर्ड में मात्र और पितृ से ही मिलते हैं। यानी देखिए कितना मिलता जुलता वर्ड है। सिर्फ लिखने में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा लेकिन उच्चारण करने में एक जैसा ही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ। इसी प्रकार अब हम इनार शब्द जो कि हिती तुर्की भाषा से है वेद काल में इंद्र शब्द के सामान्य था। यानी सूर्य यास और मारुत्यस शब्द जो है कसाइड यानी मेसोपोटामिया से जो शिलालेखों में हमें मिले हैं। वेदाकाल सूर्य और मारुतन के समान ही है। तो इससे आप ये बात समझ सकते हो कि हो सकता है कि आर्यन हो चाहे आपका इंडो हो चाहे ग्रीक लैटिन हो, संस्कृति की इन भाषाओं से एक बात तो क्लियर हो गया है कि वो उन्हीं लोगों में से थे जो भारत में आए थे। लेकिन क्योंकि हमारे समय जो था उस समय नहीं था, इस वजह से हमें पूरी जानकारी नहीं प्राप्त है। लेकिन उनके लेखों से हमें ये बात साफ समझ लेना चाहिए कि उनका अंश जो था कहीं ना कहीं जो है लैटिन या ग्रीक से ज़रूर मिलता जुलता था और उसी से संस्कृति का भी जन्म हुआ। तो ये बात समझाने के लिए पर्याप्त था और ये उदाहरण भी काफ़ी है कि मात्र और पितृ को जो है मातर और पितृ जो है लैटिन भाषा में कहते थे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका बात को। माना जाता था कि आर्य लोग मुख्यतः दक्षिण रूस के से मध्य एशिया के बीच फैले घास के मैदान स्टोपस में रहते थे। ये हमारी कल्पना है, ये मानना है हमारा। यहाँ से आर्य जो है कि एक समूह ने भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश कर लिया और इन्हें इंडो आर्यन अथवा केवल आर्य के नाम से ही पुकारा जाने लग गया। स्थानांतरण के जो है प्राथमिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यह स्थानांतरित लोग दक्षिण साइबेरिया स्थित जो है इंद्रोनोवो सभ्यता से आए थे। यानी हो सकता है कि ये माइग्रेट करके आए हों। यह सभ्यता दो जो है शब्दित ईस्वी पूर्व काल में विकसित हुई थी।
यहाँ से ये लोग जो है हिंदू कुश के उत्तर, जैसे हम बैक्ट्रिया या मार्जियाना या आर्कोलॉजिकल जो है कॉम्प्लेक्स कहा जाता था की ओर अग्रसर हुए और वहाँ से उन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया। इस काल में यानी 1900 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी के दौरान इन क्षेत्रों में हमें घोड़े, आयु पहिए, अग्नि की उपासना और शवदाह के जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं। यानी शव जो थे उसको कैसे जलाया करता था इसका भी हमें साक्ष्य मिला है। और ये सब चीज़ें भारत में जो है आर्य के जीवन का प्रमुख भाग रही है। तो इससे हमें बहुत बात समझ में आता है कि हो सकता है कि आर्य जो लोग थे उन्हीं में से एक थे जो साइबेरिया से जो है भारत में आ गए और यहाँ पर बस गए। क्योंकि कहते हैं कि उस समय लोग वो बसा करते थे किसी क्षेत्र में जहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी हो, वहाँ की कंडीशन जो है फेवरेबल कंडीशन हो और वहाँ पर रहने लायक अवस्था हो, तो वो लोग बहुत आसानी से वहीं पे माइग्रेट कर जाते थे। आज के समय में भी देखोगे लोग गांव से पलायन शहरों में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधाएं मिल रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा ही समय उस समय भी रहा हो और ऐसा होता ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो इस बात को साक्ष्य करने के लिए कंप्लीट है कि हो सकता है कि आर्य उन्हीं में से एक थे। इसके अतिरिक्त अगर कलाकृतियों और मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों से भी यह संकेत मिलते हैं कि लोग जो है मध्य एशिया से दक्षिण एशिया क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुए हैं। परंतु कुछ विद्वान अभी भी इस तर्क पर बहस करते हैं कि भाई शायद ऐसा ना हो। अब देखिए, बहस करना तो जनरल सी बात है कि अगर हम बहस नहीं करेंगे तो नए कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आर्य भारत के जो है स्वदेशी लोग थे और किसी भी बाहरी स्थान से भारत में नहीं आए। ये बहुत से जो है जो स्कॉलर है उनकी थिंकिंग है जो कि बहुत अलग बताती है। ठीक है, लेकिन क्या था देखिए दोस्तों, उस समय की जो साक्ष्य है हम उसी को ही प्रमाण मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जीवित प्रमाण नहीं है। सिर्फ हमें कुछ साक्ष्य जो मिले हैं उसी बेस पे जो है हम इसको जो है शब्दालिक अर्थ बना सकते हैं। नए लोग कई हजार वर्षों की अवधि के दौरान अनेक समूहों में भारत आए थे और इस अवधि में जो है देशज आबादी और बाहर से आए नए लोगों में परंपरा जो है कार्यकलाप चलते रहे। परंपरा कार्यकलापों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक मुख्य बात यह हुई कि आर्यों की वैदिक किस्म की भाषा संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र की प्रमुख भाषा बन गई और इस भाषा में रची गई प्रचलित पुस्तकें जिनकी उल्लेख के ऊपर दिया गया है वैदिक साहित्य कहलाया। देखिए, इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह के इंडिया के जो लोग होते हैं अभी देखते हो हर एक देश में फैले हुए हैं, तो इंडिया से कुछ ना कुछ लेके जो है अपने दूसरे देशों में वो लोग जाते हैं। तो वो अगर मान लीजिए अगर वो पूरे दुनिया ख़त्म हो जाता तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ के लोग जो थे दूसरे देशों में हर जगह फैले हुए थे। तो ये सब बात एक साक्ष्य के रूप में होता है। तो हो सकता है कि आर्यन का भी ऐसा ही रूल रेगुलेशन रहा हो कि वो किसी क्षेत्र में रहते हों लेकिन यहाँ व्यापार करने के लिए आए, चाहे किसी कारणवश यहाँ आ गए तो यहाँ के वो निवासी बन के रह गए क्योंकि उनको तो साफ उस समय चाहिए था कि उनको रहने का सही कंडीशन ज़रूरी था और वो कंडीशन शायद इंडिया में मिल गया हो तो वो यहाँ के ही निवासी बन गए। तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने के लिए ज़रूरी था। इस बात को अगर देखने के लिए आप देख सकते हो कि हाँ आर्य के आगमन को जो है तीर के निशान से दिखाया गया और सिंधु नदी के पास इनको बसाने का जो है प्रावधान किया गया था। देखा जाए तो आर्यन की बहुत से चीज़ें जो हमें सिंधु नदी के आसपास ही मिली है और कहते हैं ये समय काल जो थी 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हो सकता है कि आर्यन दूसरे जगहों से आए हो और वो भारत में जो है इसकी कंडीशन उनको काफ़ी भा गया हो और ये यहीं पे बस गए हो। तो इसमें कोई भी जो है बहस करने वाली बात नहीं है। ये क्लियर है कि आर्य जो थे कहीं दूसरे क्षेत्र से आए थे और यहाँ पर कंडीशन उनको सही लगा तो ये हमेशा के लिए यहाँ के नागरिक बन के रह गए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।